Welcome dear cadets on DC online platform. I am Sunil Kakadi, faculty in mathematics. Today we will see with a very important topic, that is a straight line previous year questions of ND. The first one, the length of the perpendicular from the origin to the line is 5 units and the line makes an angle 120 degree with the positive direction of x axis. Now see here, if you draw the line, it means the line makes an angle 120 degree with the x-axis. But if you draw the line like this, we have to find the equation of this line. The distance is given this 5 units. This distance is given from origin to the line is 5 units. This angle is 120 degree. This line is always perpendicular. This line is always perpendicular from the origin. So it means this angle is 120. The remaining angle is, total angle is 180. It means this angle is 60 degree. This angle is 60 degree. This 60 means this is 90. This 60 means this is 30 degree. This angle, it is called as alpha. This alpha is given in this question is alpha from the figure. This alpha is 30 degree. कैसे find किया? See here. This angle is 120. It means this angle is 60 degree. If this is 60, this is always 90 from the origin. This is 90. This is 60. This 90 means this remaining angle is 30. It is called as alpha. This angle is called as alpha to this line, with this line, with the perpendicular line. Now, if I using the formula normal form or perpendicular form, normal form, or it is called as perpendicular form. What is meant by the normal form? The x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. जो यहाँ पर एंगल अल्फा होता है वो ऑलवेज एंगल होना चाहिए विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस, बट एंगल होना चाहिए फ्रॉम यहाँ ओरिजिन से. ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये लाइन के साथ वो एंगल करता है कितना डिग्री? 30 डिग्री. कैसे फाइंड किया हमने? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 120, दिस इज 60, ये तो ऑलवेज होता 90. दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री. दिस मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री. इट इज कॉल्ड एज अल्फा विद द x-axis, and this p is here distance of the line from the origin. ये जो है आपको दिख रहा है ये p here, ये जो distance है ये वाला distance, ये कितना है? p is given 5. Put all the values here. x cos 30 plus y sin 30 is equal to, p is given here 5. So what is value of cos 30? Cos 30 is root 3 by 2. तो ये आएगा root 3 by 2 into x plus sin 30 is 1 by 2. This is y by 2 is equal to 5. दोनों का बेस सेम है 2 कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज root 3x plus y is equal to 2 आएगा बेस, 2 से कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 10. This is a required equation of line. नोट डाउन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? जो एंगल आपको दिया है वो एंगल को फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन. सो दिस एंगल इज गिवन 120, दिस मीन दिस इज 60, दिस ऑलवेज एंगल इज 90. तो रिमेनिंग एंगल कितना आएगा आपका? अल्फा. अल्फा इज 30 डिग्री. दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल. नाउ द सेकंड वन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन to the point of intersection. The point of intersection of the lines. The point of intersection of these two lines. मतलब यहां से एक आपको पॉइंट मिलेगा एंड एक कहां है आपका? ओरिजिन है. ये क्या है? ओरिजिन. The equation of the line joining the origin and the point of intersection of these two lines. तो फर्स्ट ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है दो ए और बी के फॉर्म में, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे. सी है तो फर्स्ट लाइन बनेगा हमका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स बी एक्स प्लस a इंटू वाई ए वाई इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा ए बी.
बी इंटू एक्स बी एक्स, ए इंटू वाई ए वाई, दोनों नीचे डिवाइड, ए भी आएगा, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा a इंटू एक्स बी इंटू वाई, फ्रॉम हियर ए एक्स यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू, ए बी हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां से भी आएगा ए बी। इक्वेशन नंबर 2। इफ यू सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहां ए बी दिखाई दे रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इफ यू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, दिस ए बी गेट कैंसिल आउट, फ्रॉम हियर वी गेट x कॉमन आएगा। इफ एट x कॉमन, तो यहां से आ जाएगा b माइनस ए प्लस a माइनस b, टेक y, तो यहां से आएगा a माइनस b इज इक्वल टू, a b हुआ है कैंसिल आउट। सो इफ यू टेक द माइनस साइन फ्रॉम हियर कॉमन, तो x b माइनस a, टेक द माइनस साइन कॉमन, तो ये आ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू, क्या किया आंसर मैंने, माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो टेक दिस टर्म राइट हैंड साइड, तो आएगा x b माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस का प्लस y b माइनस ए, तो b माइनस ए गेट कैंसिल आउट, तो यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू y, देयरफॉर प्लस का माइनस, x माइनस y इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं इन दिस फॉर्मेट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो यहां से x इज इक्वल टू वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ आपको यहां तो x इज इक्वल टू वाई मिला है, तो ये क्या करें, इक्वेशन नंबर पुट कर देंगे 1 और 2 में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट। हमने अभी दोनों सॉल्व किया, x इज इक्वल टू वाई, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो पुट इन इक्वेशन 1, यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के, पुट इन 1, x इज इक्वल टू वाई, इफ आई पुट हियर दिस वैल्यू x की जगह पे y, तो यहां से आ जाएगा, तो b x में, तो पहला y की जगह पे x पुट कर देंगे, y की जगह पे x, तो a x इज इक्वल टू a b, y के प्लेस पे x पुट कर दिया, तो b x एज इट इज, इन प्लेस ऑफ y पुट x, ax इज इक्वल टू ए बी, x से कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया तो ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, सो डिवाइड कीजिए a, तो x इज इक्वल टू ए बी अपॉन a प्लस बी, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो वैल्यू ऑफ x इज ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो y भी सेम आएगा, बिकॉज x इज इक्वल टू y मेरे पास है, तो y भी सेम आ जाएगा, y इज ऑल्सो इक्वल, बिकॉज x इज इक्वल टू y मेरे पास है, तो ए बी अपॉन a plus b, this is the value of y. So now we have to find out the equation of the line joining the origin to the point of intersection. तो ये हमको मिला है point of, this is the point of intersection, ये जो equation हमारे पास आया है, this is the point of intersection of these two lines, and origin तो रहेगा 0,0, origin क्या रहेगा 0,0, तो इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है लाइन का, तो हम यूज कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म का, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या रहता है हमारे पास, 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन, तो यहां से आ जाएगा, लेट कंसीडर दिस पॉइंट एज x1 y1, दिस पॉइंट x2 y2, तो 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगा, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, लेट कंसीडर दिस इज सपोज x1 y1, दिस पॉइंट, एंड दिस इज x2 y2, जब उसको पॉइंट में करेंगे कंसीडर x एंड y के फॉर्म में, this is consider x2, this is consider y2, what is the 2 point form, 2 point form से आ जाएगा y2 minus y1, so y2 minus y1, y2 is this, y1 is this one, y2 minus y1, so ab y2 minus y1 upon a plus b minus 0 upon x2 minus x1, x2 is ab, a plus b, a into b upon a plus b minus x1 is 0 is equal to y minus y1 0 upon x minus x1 0। देखो यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करो थोड़ा सिंपल,
ये तो टर्म हो जाएगा डायरेक्ट कैंसिल आउट, बिकॉज ये क्या है सेम, यहां से कितना आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1, सो ये कैंसिल आउट, यहां से 1 आ जाएगा, सो 1 इज इक्वल टू मेरे पास y माइनस 0 x माइनस 0, तो क्या आएगा y अपॉन x, डिवाइड हो जाएगा x मल्टीप्लाई, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा लाइन का y इज इक्वल टू x, दैट इज y माइनस x इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये कहां से पास होता है, ओरिजिन से, तो इक्वेशन आ जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 0। नोट डाउन दिस सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड एग्जांपल, नोट डाउन दिस। Now the example number 3. A point A is given 3,4, B is given 5 minus 2 are the 2 points, and P is a point such that P is equal to PB. Condition we have to given. If the area of triangle PAB is 10 square units, area is given 10 square units, then what are the coordinates of point P? तो आपको P के coordinates क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी में पूछा गया था 2014 सेकंड में। नाउ सो लेट कंसीडर फर्स्ट फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फर्स्ट वन P is equal to PB. So let consider the A is given from given A 3,4, B 5 minus 2, and let consider the point P. Let the point P as x, y, जो कि हमको पॉइंट x, y फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, उसको हमने कंसीडर किया है लेट पॉइंट P एज x, y. सो नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, सो PA इज इक्वल टू PB. सो बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन 1 इजीली, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम। सो P इज इक्वल टू PB, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये आ जाएगा PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। सो डिस्टेंस फार्मूला से देखो, लेट कंसीडर द पॉइंट दिस इज एज x1 y1, दिस पॉइंट एज x2 y2 फॉर PA के लिए P एंड A, तो x2 y2 इज x, y and A as x1 y1. So we know that the distance formula is x2 minus x1, x2 minus x1, तो x minus 3 square plus y2 minus y1, तो y2 is y minus y1 is 4 is equal to, now for the PB, B consider x1 y1 and मेरे पास P तो ऑलरेडी है x2 y2, so x2 minus x1, x minus 5 square plus y minus minus plus 2 square, so 3,4 5 minus 2 वाली पुट कर दिया, x2 minus x1 y2 minus y1, x2 minus x1 y2 minus y1, तो ये माइनस बी का स्क्वायर करें सिंपली, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, सिंपली यूज किया a माइनस बी का स्क्वायर एंड a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर y स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, टेक दिस ऑल टर्म्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा माइनस का प्लस 10, माइनस का प्लस 10, 10x माइनस 6x दैट इज द 4x प्लस का माइनस 4y माइनस 8y प्लस का माइनस दैट इज 12y, देन कांस्टेंट टर्म ये 9 एंड 16, 9 प्लस 16 25, तो ये 25 हो जाएगा, 25 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का माइनस 4, तो वहां से रखा भी चलेगा, दिस इज दी 4, x स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर कैंसिल आउट, देन 9 16 25 के साथ 25 कैंसिल आउट, माइनस का प्लस तो 10 4x प्लस का माइनस दैट इज अ 12y, so if I divide by 4 it gives x, if I divide by 4 x minus 3y is equal to 1, 4 3s are 12, so equation number consider 1. Now let's consider from the second condition, area of a triangle is given 10, so we know that the area of triangle, the formula area of triangle is given PAB is 10.
सो यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. सो वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 mod of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 then plus x3 y1 minus y2 mod complete is equal to area is given 10. So x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y2. So ये 2 हो जाएगा डिवाइड का यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली 10. तो ये 2 यहाँ पर चला गया. x1 का वैल्यू, लेट कंसीडर द वर्टिसेस एज वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल. PAB आर द वर्टिसेस. तो यहाँ से मैं छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज ये ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस A, B एंड C. तो सॉरी A, B एंड P, A, B एंड P मेरे पास है. So A is x1 y1, consider. B is x2 y2, consider for the second case. This case consider A is 3,4, B is 5 minus 2 and the P हमने consider xy किया हुआ है, right? So divide का हो जाएगा 2 multiply यहाँ पर. तो x1 का value, let consider this is x1 y1, this is x1 y1, this is consider x2 y2, this is consider x3 y3. Now put all the values. x1 is 3, mod में x1 is 3, तो y2 minus y3, y2 is minus 2, x1 x2 y2 minus 2 minus y3 is y plus x2 is 5 and y3 is x minus y1 is 4. y1 कितना है? 4 है. प्लस x3 is x, x3 is x, y1 minus y2, y1 is 4 and y2 minus plus 2 is equal to 20. ये हो जाएगा 2 यहाँ पर डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो 10 into 20 आ जाएगा. सो सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ से. तो मॉड ऑफ -6 minus 3y, this is a mod, plus 5x minus 5 4 20 plus ये 4 6 था तो आएगा 6x mod complete is equal to 20. After simplification it gives 6x plus 5x, that is 11x mod of minus 3y minus 3y minus 3y. यहाँ पर y3 का वैल्यू आई थिंक y था, इट माई मिस्टेक CL. यहाँ पर y3 का वैल्यू y, x2 CL, x1 is 3, y2 is minus 2, then y3 is y, then x2 is 5, y3 is y here, y3 is y. यहाँ पर y आ जाएगा, here is y, find y 5y और ये minus 20, 5 4 20. और यहाँ पर y1 minus y2, x3 is x, then y1 is 4 and y2 is minus 2, minus plus 2. तो ये आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन 6x एंड ये आ जाएगा प्लस 2y, 6x 5y minus 3y प्लस का 2y, then -6 and -26 mod complete is equal to 20. 6x 5y minus 3y, that is 2y, minus 20 minus 6 is equal to 20. Now what is meaning of mod? एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन आएगा. Now take the positive, एक बार नेगेटिव साइन. If I take the positive sign तो आएगा 6x plus 2y minus 20 is equal to, एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा आफ्टर टेकिंग द नेगेटिव साइन. तो ये आ जाएगा, नीचे लिख रहा हूँ नहीं तो सेकेंड यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड 6x plus 2y minus 26 is equal to -20. एक बार प्लस एक बार माइनस साइन. तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन करेंगे हम इस इक्वेशन से, तो हमको मिल जाएगा 6x plus 2y माइनस का प्लस इज इक्वल टू 46.
ये आ जाएगा 6x प्लस 2y माइनस का प्लस, इट गिव्स प्लस का 6. सो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन नंबर 1 के साथ इक्वेशन नंबर आपको 2 सॉल्व करना है, देन इक्वेशन नंबर 1 के साथ इक्वेशन नंबर आपको 3 सॉल्व करना है. सो इक्वेशन नंबर, इफ आई सॉल्व 1 and this equation number suppose 2 here, equation number 2, so it gives, so solving equation number 1 and 3, I am solving equation number 1 and 3. So 1 is x minus 3y and this equation is second is 6x plus 2y. यहाँ पर है मेरे पास 3, यहाँ पर मेरे पास है 2, लेकिन उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा. नाउ सी है, उसको मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, उसको डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 3x प्लस 2 यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 23. उसको डिवाइड कर दिया 2 से तो 3 यहाँ से आएगा y, यहाँ पर आएगा 23, 2 जा 46 आता है. सो ये इक्वेशन और उसके साथ सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर इसके साथ. तो ये मेरे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वल 1. उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3, नहीं तो उसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये देखो आ जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा 9y, यहाँ पर आ जाएगा 3. उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका भी सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3x गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 20. तो y is equal to 2. We get the value of y is equal to 2. Now put this value in equation number 1. यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दिया तो x माइनस 2 into 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का प्लस तो आएगा 7, यहाँ 6 इज इक्वल टू 1 माइनस का प्लस, इट गिव्स, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7. x इक्वल्स टू 7. तो आपको फर्स्ट पॉइंट आपको मिला है 7 and 2. 7 and 2. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज p इज 7,2. ये कहां से मिले आपको, इक्वेशन नंबर हमने 1 and 2 को सॉल्व किया. आप वैसा इक्वेशन नंबर 1 and 3 को सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ. देखो क्या आएगा, सी 1 and 3. सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट x, ये हमारा पहला आंसर आ चुका है. सेकेंड वन इज x minus 3y is equal to 1 and equation number third is 6. उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से तो ये बन जाएगा 3x प्लस y is equal to, यहां से आ जाएगा 3. कितना आता है, 3 आ जाता है. सो अब इसको आपको सॉल्व करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा. इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 तो इट गिव्स 9, यहाँ आ जाएगा 3y और यहाँ आ जाएगा 9. सो माइनस 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 एंड माइनस, सॉरी, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो एडिशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस 3y गेट कैंसिल आउट, तो ये आएगा 10x इज इक्वल टू 10. सो x इज इक्वल टू 1. पुट इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से देखो आ जाएगा 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 1. 1 गेट कैंसिल आउट तो यहाँ से y आ जाएगा आपके पास 0. सो x इज 1, y 0. तो सेकेंड पॉइंट आपको मिला है 1,0. द सेकेंड पॉइंट ऑफ p इज 1,0. द फर्स्ट पॉइंट इज 7,2 and 1,0. Note down this.